लैपटॉप पे सब बैठ के देख रहे हैं वर्ल्ड सिनेमा, सबटाइटल्स पढ़ते पढ़ते भी मेरे चक्कर आ रहे होते थे कि यार पहली बार मूवी देखने जा रहे थे, पापा ने फाइनली बोला कि हाँ ठीक है मैं तुम्हें दिखा दूंगा सिंगल स्क्रीन पे, तो आई वाज टू एक्साइटेड कि फाइनली शायद मेरे पापा बदल गए। Who is one of the most underrated dancers in India? Jaideep Ahlawat. Jaideep Ahlawat dances so well. Boy, my mind was blown and I was like, of course he dances well. He's Jaideep Ahlawat यार। हैरानी की क्या बात है भाई, इतने अच्छे एक्टर हैं, he can do anything. Tomorrow and Tomorrow is one of the most beautiful books that I've read, and this book explores platonic love in the most beautiful way. In the Mood for Love is my all-time favorite film. Every frame a painting है वो यार। मैं जब भी वो मूवी देखती हूँ फिर मैं बैठी रह जाती हूँ उसके बाद। The music, the frames, the acting, so beautiful. It was like you dance so well, तो मेरी फिल्म में कोई कोरियोग्राफी क्यों नहीं करती? मैं कहा हाँ कर लूँगी. And it got very serious when Amir sir and Advait were like, are you ready with the choreography? And I was like, oh my god, they're not joking, like this is actually happening. Hey guys, welcome to another episode of Longest Interview Season 3. आज का मेरा episode है with the brilliant actor Sania Malhotra. Sania was such a sweet person to talk to. Sania के जितने भी takes हैं in regard to movies, books, music, they are so authentic. She's also one of those actors who has her own letterbox और वो letterbox पे films को review करती है, and she also opened her letterbox in the middle of the episode. This season of The Longest Interview is presented by The Lit School. I'll talk about all the brands and how we make this season happen towards the end of the episode. So please pura ka pura dekhna. And now let's jump right inside the conversation I had with Sania Malhotra on Chalchitra Talks. Hi Sania, how are you? Welcome to Chalchitra Talks. Namaste to Chalchitra Talkies. Chalchitra Talks. Talks. सारे हम सबको बोलते हैं कि टॉक्स है, सब टॉकीज ही बोलते हैं। क्यों ऐसा है? पता नहीं, सबको वो बॉम्बे टॉकीज और लाइक आई डोंट नो। नमस्ते टू चलचित्र टॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग इट, और मेरे को बहुत अच्छा लगा आपने अकोमोडेट किया टाइम हमारे लिए चेंज करके, बिकॉज वी कुड डू। थैंक यू सो मच फॉर चेंजिंग इट लास्ट मिनट। बट आप लोगों ने भी किया है, वाज लाइक यस दिस इज हैपनिंग। मतलब आपकी टीम का जब कॉल आया वो लाइक आज ही कर लो, लाइक परफेक्ट, लाइक सुबह सुबह कर रहे हैं हम ये। हाँ ये सुबह सुबह कर रहे हैं। सो या सानिया, मैं आज आपसे बहुत सारी बातें करने वाला हूँ, बहुत सारी रिकमेंडेशंस लेने वाला हूँ। ग्रेट, आई एम रेडी। आवर शो इज ऑल अबाउट मूवीज, बुक्स, म्यूजिक, पॉडकास्ट। बट जो मुझे पता चला है, यू आर वन ऑफ द फ्यू एक्टर्स दैट आई नो ऑफ जो लेटरबॉक्स पे है एंड लेटरबॉक्स पे एक्टिव है। या एंड थी एक्टिव थी। आई एम नॉट वॉचिंग इनफ मूवीज दीज डेज, एंड वन ऑफ द रीजंस व्हेन आई वाज अ बिट लाइक कि मैं कैसे मैं ये जाके बोलूँ एज एन एक्टर दैट आई एम नॉट वॉचिंग इनफ मूवीज। एक तो मैं बिजी भी थी, ऊपर से आई टुक सम टाइम ऑफ वर्क and I wanted to recharge my creative batteries, and I think because of social media also मेरा थोड़ा attention span has gone down, but मैं letterbox पे active थी, and इसलिए भी थी क्योंकि one of my friends got me to use that app because she uses it a lot. अंजलि, my best friend, तो वो बहुत movies देखती है और वो मतलब she's quite active on it. And one day I was like, what do I do? I want to, you know, as an actor I want to learn more. तो तुझे क्या लगता है? And she's also an artist, and she's someone that I really look up to because she's constantly learning new things, and she keeps her art alive by watching other people's art. तो मैंने पूछा कि मैं क्या करूँ? She said watch more movies, and then I downloaded Letterboxd and I, you know, I kind of got hooked to that whole. So आप proper reviews वगैरह लिखते थे उस पे, like नहीं। Would you give ratings? Ratings, yes. Just to see कि कौन सी films अच्छी लगी, क्या performances, and you know then you study, you see films in a very different way then. और फिर आप फिल्मों में काम करते हो तो फिर आपका वो एक लेंस चेंज हो जाता है जब आप मूवी देख रहे होते हो, तो वो भी हटाना मेरे लिए थोड़ा आजकल मुश्किल हो रहा है। मैं वो देखूंगी सेट क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, ये सब वो मैं डिटेल्स में चली जाती हूँ इंस्टेड ऑफ रियली एंजॉयिंग द फिल्म एंड द स्टोरी।
So many filmmakers are on Letterboxd and like जैसे अनुराग कश्यप सर है वहाँ पे, और बाहर के भी I think Martin Scorsese is also on Letterboxd, right? Yes. And people are so like happy to see जब आप अपनी इंस्पिरेशंस के रिव्यूज देखते हो, आपके जैसे 3 स्टार 4 स्टार दे रहे हैं, मतलब ये कितनी अच्छी कम्युनिटी है ना. Yes, it is quite good. एंड मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि कौन सी फिल्मों को आपने 5 स्टार दी है और 1 स्टार दिया है. इज देयर अ 0 स्टार रेटिंग ऑन इट? Not 0 but like 1.5. 1 आपने दिया है. या ज़्यादा नहीं दे पाती मैं, पता है, क्योंकि मुझे लगता है कितने लोग मेहनत करते हैं हर फिल्म में. हाँ. मैं थोड़ा ऐसा इमोशनल हो जाती हूँ कि कितने लोगों ने मेहनत, कितने लोगों स्क्रिप्ट से स्टार्ट हुआ होगा और लोगों ने काम किया होगा, तो मैं थोड़ी, मेरे लिए मुश्किल होता है टू गिव ऐसा 0 टू एनी फिल्म. Okay, but pre-Letterboxd, which was that time when you started consuming movies academically? Letterboxd से स्टार्ट हुआ. I'll be And very Letterboxd came in which year in your life? 3 years back. Okay, okay. I tell you why. I'll give you a reason. बचपन में पहली मूवी जब थिएटर में देखी थी, टीवी पे तो जो चलता रहता था, ठीक है. ऐसी कोई फिल्म्स हम देखते नहीं थे घर पे. ऐसा पता नहीं क्यों बचपन से मुझे एक्टर बनना था, पर घर पे ऐसा था नहीं कि कोई मूवी देख रहा है बैठ के. मैंने वो त्रिदेव और कौन सी एक और, यही एक और ऐसी वो सनी देओल की मूवी है, वही देखी है रिपीट पे, क्योंकि पापा इज़ अ ह्यूज सनी देओल फैन. तो वो 2 फिल्में, त्रिदेव है और कौन सी है, विश्वात्मा, कि ये 2 फिल्में पापा बचपन से मुझे बोलते थे कि ये जब भी टीवी पे आती है ना मेरे साथ कुछ अच्छा होता है. तो दीज 2 वर हिज लकी फिल्म्स. तो टीवी पे और कुछ चलता ही नहीं था क्योंकि वो हमेशा आ रही होती थी. और वो मैंने रिपीट पे देखी हैं. ना पापा को ना पुराने गानों का शौक़ बहुत था, पर फिल्में देखने का नहीं. और फिल्में बाहर जाके देखना, पैसे लगेंगे, ये है वो है, बजट पे चल रहे हैं, तो देखी नहीं. पहली फिल्म जो मैंने देखी वो एक सिंगल स्क्रीन पे जाके पापा ने फाइनली, जब हम बड़े हो गए तो हमें लेकर गए और दिखाई कभी खुशी कभी गम. उससे पहले तक यू नो व्हाट आई यूज्ड टू डू, मेरी एक सोसाइटी में एक फ्रेंड थी, आरती दीदी. वो सारी फिल्में देखती थी जाके, फिर वो वापस आती थी फिल्में देख के, फिर हम सबको ऐसे बिठा के बताती थी कि वो हीरोइन ने क्या कपड़े पहने थे, फिर सीन में क्या हुआ था, फिर पूरा वो बैठ के हमें बताती थी कि फिल्म में हुआ क्या है. तो 2 घंटे हम सिर्फ बैठ के आरती दीदी को सुन रहे होते थे कि फिल्मों में हुआ क्या है. मैं खुद देखती नहीं थी. जब तक टीवी पे नहीं आया, केबल पे नहीं आया, केबल वाले ने लगाया नहीं, तब तक मैं फिल्में देखती भी नहीं थी. तो पहली फिल्म देखी कभी खुशी कभी गम ना. कभी खुशी कभी गम में कोई ऐसा सीन आता है सेकंड हाफ में जहाँ किसी को थप्पड़ पड़ता है? शाहरुख खान को पड़ता है ना. हाँ, तो मैं सेकंड हाफ में सो गया था, फिर एक थप्पड़ पड़ता और मैं उठ गया था. मेरे को ये बहुत ढंग से याद. मैं तो सो नहीं सकती थी क्योंकि हम पहली बार मूवी देखने जा रहे थे. पापा ने फाइनली बोला कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें दिखा दूंगा सिंगल स्क्रीन पे. और वो भी हमने बैल्कनी में बैठ के देखी थी. तो आई वॉज टू एक्साइटेड कि फाइनली शायद मेरे पापा बदल गए. अब हम मूवीज़ देखने जाएंगे, मैं भी बताऊंगी जाके कि सबने क्या पहना था कपड़े. तो मेरी आदत नहीं थी फिल्म्स देखने की, पर सपने बहुत बड़े थे कि ये फिल्मों में मैं भी काम करूं. नाइस. पर देखा नहीं. आई विश कि मेरी वो आदत बने. लाइक आई वांट टू बी लाइक, आई रिमेंबर आई वाज शूटिंग हिट विद राजकुमार राव, और हमारा एक स्केड उदयपुर का था और हम सेम फ्लाइट में थे. बट ही हैड लाइक आई थिंक 3 फिल्म्स डाउनलोडेड ऑन whatever app that he had. I think Mubi he was watching those films on. And he said that I'm going to finish all watching these films today. फिर मुझे लगा, मैंने कहा बेटा सान्या, तू ना ज़्यादा काम कर नहीं रही है, ठीक है, अपने ऊपर एज एन एक्टर अब लग ले, तू भी देखे फिल्में. तो वैसे देखना, आई नीड टू ऑल्सो गेट इन टू अ हैबिट ऑफ वॉचिंग फिल्म्स लाइक दैट. आपको पता है इस चैनल का जो origin story, it is similar to this. Is it? Yeah, because when I started this channel in 2018,
तो मैं ऐसी कुछ पार्टीज में गया था, उससे पहले मैं इंटर्नशिप करता था यहाँ पे टीवीएफ में, तो मैंने एक दो पार्टीज़ में देखा कि अरे सो दिस फिल्म मेकर ये बात हो रही है, मैंने किसी से पूछ लिया ये कौन है, और पार्टी में सबने अपने ड्रिंक साइड में रखे थे, कोई ये नहीं पता, एंड एवरीवन इज लाइक, एंड आई एम लाइक कि बेटा अगर तेरे को इस सिटी में लाइक इफ़ यू वांट टू मेक अ बेस हियर, you really need to up your game. Thank you so much for making me feel so comfortable because जब मुझे ये opportunity मिली इस podcast की, I was so nervous. As I told you, मैंने कल अपना लेटर बॉक्स खोला, मैंने कहा क्या फिल्म है कैसे क्योंकि मुझसे कोई पूछता है मेरे दिमाग से सब चला जाता है कि क्या है, एंड एज एन एक्टर होना चाहिए पता. या और सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको नाम पता हो, बट I think कहीं ना कहीं it helps you in your craft when you watch other artists and other films and other actors doing. मेरी भी पार्टीज में ये हालत होती थी कि ये कौन है, मैं तो कुछ बोलती भी नहीं थी. नहीं हूँ मैं ऐसे, क्योंकि अगर मैं कोई फिल्म कर रही हूँ, मैं कोई कैरेक्टर में हूँ, unless and until I decide that this is my character's trait कि वो फिल्में देखती है, तब तक ना मैं कुछ नया इंट्रोड्यूस कर भी नहीं पाती. मेरा म्यूज़िक भी बदल जाता है, फिर मैं कुछ नया म्यूज़िक सुनने लग जाती हूँ. आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, मे बी आई शुड स्टार्ट डूइंग दैट. कि कोई कैरेक्टर में घुसो और देन आप ये डिसाइड कर लो कि इस कैरेक्टर को फिल्में देखना पसंद है, मे बी मैं फिल्में ज़्यादा देखना. या एक फिल्म है स्कूल ऑफ रॉक. Yeah, of course. Have you seen it? Do you like it? तो उसके जो फिल्म मेकर है रिचर्ड लिंकलेटर, जिन्होंने बिफोर सनराइज, बिफोर सनसेट बनाई, आई लव हिम. सो वो अपने एक्टर्स को पता है ये टास्क देते थे कि अच्छा तू रॉक में तो ये गिटार बजा रहा है, सो तेरा कैरेक्टर ये सारे आर्टिस्ट सुनता होगा, सो गो एंड लिसन टू देम. सो वो सबको ऐसे होमवर्क देते थे, तो तुम लाइक कीबोर्ड करते हो, सो यू शुड गो एंड लिसन टू दिस बिकॉज आई थिंक योर कैरेक्टर माइट बी इनटू दिस. आई डू दैट अ लॉट विद माई कैरेक्टर्स एज वेल, कि अगर जब मैं कैरेक्टर बना रही होती हूँ तो मैं ये ज़रूर कुछ ना कुछ करती हूँ, या तो म्यूज़िक बदल देना, समटाइम्स आई ऑल्सो सेंट बदल देना. आई थिंक वी हैव अ म्यूचुअल फ्रेंड एंड आरती कदव जो आपकी फिल्म की डायरेक्टर है, लाइक आई एम ऑल्सो वेरी क्लोज टू हर. सो आई सेंट हर अ वॉइस नोट येस्टरडे टेलिंग हर कि मैं आपके साथ एपिसोड कर रहा हूँ, सो व्हाट शुड आई आस्क हर. आई टेल यू वन ऑफ द आंसर्स, दूसरा मैं आगे बताऊंगा. शी इज़ लाइक, मैंने कहा कोई ऐसी चीज़ बताओ सान्या के बारे में जो हमें नहीं बताई. शी इज़ लाइक डायरी एंट्री ऑफ एवरी सीन. शी राइट्स थिंग्स दैट्स नॉट इन द स्क्रिप्ट टू. मैंने पता है किससे सीखा ये, मेरी दूसरी फिल्म वॉज फोटोग्राफ. And after Dangal, the film that I shot, पर आई पटाखा पहले थी, पर दूसरी फिल्म मैंने फोटोग्राफ शूट करी थी. एंड उस पर मुझे मौका मिला टू वर्क विद गीतांजलि कुलकर्णी जी, और रितेश कॉल्ड अस टू डू अ सीन टुगेदर. आई थिंक वी वर डूइंग रीडिंग्स टुगेदर. तो मैं अपनी स्क्रिप्ट और अपना नोट पैड लेके पहुँच गई, एंड गीतांजलि केम and she was playing my character's house help and the woman that she is really close to, और वो उससे कुछ भी बातें करती है. मैं भी आऊँगी कभी गाँव. क्या करेंगे आके? Gitanjali came with everything, like not just her notes, but उनका कैरेक्टर क्या गाने सुनेगा. अपनी वो साड़ी लेकर आई उन्होंने, शी चेंज इनटू दैट साड़ी ताकि उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो बदले. एंड व्हेन वी वर डूइंग द सीन्स, वो रितेश को बता रही थी कि मैंने ना ये गाना सुना, मुझे लगता है कि मैं अपने गांव में ना बैठ के ये गाना ज़रूर सुनती होंगी जब मैं खेतों में बैठी होंगी. और मैंने कहा यार वाह यार, ये तो बहुत ही सुंदर तरीका है टू सी योर कैरेक्टर. उससे पहले मैंने दंगल करी. दंगल में हम लिखते तो थे बट इतना डिटेल मैंने शायद नहीं करा, क्योंकि दंगल में फिज़िकलिटी चेंज करना बहुत ज़रूरी था. तो आई थिंक रेसलिंग काफ़ी हेल्प कर रहा था टू गेट टू नो माई कैरेक्टर बेटर. तो जब बॉडी लैंग्वेज आ गया तो दैट हेल्प्ड. ना फोटोग्राफ में वो मेंटली आना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने फ़ोटोग्राफ से करना स्टार्ट किया ये कि मैं अपने कैरेक्टर के बारे में लिखूँगी, मैं उनका चाइल्डहुड लिखूँगी, और सीन से पहले के 2 सीन या 1 सीन लिखूँगी जो मेजर सीन्स हैं, कि उनके ये इस पॉइंट तक वो आए कैसे, उनका रिलेशनशिप कैसा है उनके घर वालों के साथ. और चाहे कोई भी कैरेक्टर आ रहा है स्क्रिप्ट में, उसका रिलेशनशिप वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू और उसका
feelings क्या है towards them. I started writing that. And I saw that change because photograph was so emotionally like heavy film. I remember feeling not myself for months. मैं अपने आसपास सबको बोलती थी कि मैं नहीं हूँ, मुझे लग नहीं रहा कि मैं नहीं हूँ. And I used to also, I remember for months I used to tell people, I think I am Meloni. मुझे पता नहीं था, maybe I am her. Because I didn't have like proper boundaries. I didn't realize that I'm getting the character back home and I need to have proper boundaries. And with my character. And that was of course like playing on my mind constantly. उसके बाद मैंने बधाई हो करी और मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि भाई मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं कहाँ आ गई हूँ. बधाई हो वॉज अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर. बट वो जो मेरा मेलोनी जो मेरी सिस्टम से निकला है वो पटाखा में जाके निकला है. वो जो आया ऐसे बाप खाने की बोला उसमें निकल गया कि अब तो मेलोनी आई नहीं. सो देन आई रियलाइज दैट ऑफकोर्स यू आर इंड्यूसिंग दीज इमोशंस. When you sit and write, you are putting things in your subconscious mind. So I realized that you have to constantly remind yourself कि this is not you. ये जो तेरे कैरेक्टर के साथ हो रहा है तेरे साथ नहीं हो रहा सच में. बट पटाखा के बाद तक इनफैक्ट मैं we had no boundaries. ये वाली डायरी वाली चीज़ मैं भी करता था. आई स्टार्टेड बैक इन 11th स्टैंडर्ड की मैनिफेस्टेशन होगी तो मैं रोज़ सुबह उठ के लिखता था आई विल क्रैक IIT JEE, आई विल क्रैक IIT JEE. मेरा तो नहीं हुआ. मेरी तो AIEEE में भी 90,000 रैंक आई थी. बट ऐसा लगता था यार कि सुबह उठते ही कि माय नेम इज़ वैभव एंड आई विल क्रैक IIT JEE. ये मैनिफेस्टेशन नहीं है, मैं तो पूरा आई induce things like I not only write, when I'm writing I'm believing that this is happening with my character. So for मैं जो करती हूँ आजकल जो मैंने करना स्टार्ट किया है वो morning pages है which is a very famous technique for artists where you write as soon as you wake up you write 3 pages like longhand format. If I'm not wrong, that is what. आप ऑन पेपर पेन के साथ पेन एंड पेपर के साथ A4 साइज के पेपर पे यू कीप राइटिंग कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है. बड़ी फेमस टेक्निक है. आर्टिस्ट वे बुक का. आर्टिस्ट वे से ये. आर्टिस्ट वे से. ओह सो ओके मुझे ये नहीं पता था दिस वाज मेंशन्ड इन आर्टिस्ट वे. दिस इज मेंशन्ड. दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन आर्टिस्ट वे. ओके मॉर्निंग पेजेस और 3 या मॉर्निंग पेजेस इट्स कॉल्ड. मॉर्निंग पेजेस इट्स कॉल्ड. So I've been doing that. So you write and basically it helps you to get out of your critical mind. Yeah. One thing I noticed about this was मैं पिछले 11 साल से जर्नलिंग कर रहा हूँ. I think 2016 में चालू किया था. 9 साल से जर्नलिंग कर रहा हूँ. So one thing I realized is कि I would write more on the bad days than the good days. देन आई रियलाइज कि तेरे को अच्छे दिनों पे भी लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ऐसे ही थोड़ी कि जब लाइक कोई गम में हो तभी लिखना है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू राइट एंड लाइक गिव इट लाइक सम वेट लाइक ऑन द गुड डेज टू. एवरी मॉर्निंग व्हेन आई वेक अप आई फील लाइक कि A4 साइज कैसे भरूँ मैं. हाँ. बट देन पता भी नहीं चलता इन लाइक 20 minutes. ज़ुप सब. ओके हम अब मूवीज में आगे बढ़ते हैं. कभी खुशी कभी गम. डिड यू कंसिडर इट अ गुड फिल्म? यस. हु इज योर फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम कभी खुशी कभी गम? शाहरुख खान. नाइस. मैं शाहरुख खान फैन. और उससे पहले भी थी. मैं जो टीवी पे जो भी फिल्में देखती थी तो शाहरुख खान के तो सभी फ़ैन हैं. ओके एंड देन कभी खुशी कभी गम के बाद लाइक टेल मी अबाउट लाइक योर फिल्म वॉचिंग जर्नी. मेरे मामा हैं तो वो प्लान बनाते थे और फिर वो ही यूज्ड टू इनवाइट अस. सो 2 अभी तक नाम आ गया. आरती दीदी एंड मामा जी. मिक्की मामा. अजय मामू है उनका नाम. वैसे हम मिक्की उनको बुलाते हैं. तो वो प्लान बनाते थे. उनको फिल्में देखने का बहुत शौक है. वो सारी फिल्में देखते हैं एंड आई एम सो हैप्पी कि वो हमें इनवाइट करते थे कि उनके चक्कर में हम भी देख लेते थे फिल्म. तो सोचा ना था देखी, कल हो ना हो देखी, जो भी फिल्में तब चल रही होती थी. बिफोर लेटरबॉक्स आई रिमेंबर कब स्टार्ट हुआ था. जब मैं मुंबई आई थी तो मेरा एक नेबर था रोहन, जो आई थिंक वो ऐसी कोई फिल्म नहीं होगी उसने नहीं देखी, कोई लैंग्वेज नहीं होगी उसने नहीं छोड़ी. वो सारी फिल्में देखता है, सारी लैंग्वेजेस की फिल्म देखता है.
और आई वॉज सो फैसिनेटेड व्हेन आई मेट हिम. आई वॉज लाइक यार रोहन तू जब देखो तो मूवी देख रहा होता है यार, तू बता तू कौन सी फिल्म देख रहा है. कोई फ्रेंच कोई इटालियन पता नहीं कोई भी बैठ के वो देख रहा होता था. एंड फिर वो उसने हमें इनवाइट किया, सारे मेरे जितने भी रूममेट्स थे, बड़े रूममेट्स हैं, मैं हमेशा बोलती रहती हूँ जितने भी रूममेट्स थे, काफ़ी थे हम लोग घर पर. तो हम सब, रोहन जब फिल्म देख रहा होता था तो उसके साथ जाके बैठ के देख रहे होते थे लैपटॉप पे, सब बैठ के देख रहे हैं वर्ल्ड सिनेमा. कभी कभार तो मुझे समझ भी नहीं आता था, मुझे लगता था भाई भगवान ना करे कोई कॉन्वर्जेशन स्टार्ट कर ले, बिकॉज सम ऑफ द फिल्म्स आई एम जस्ट नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग. क्योंकि सब तब मैं जब मुंबई आई तो ये जो मेरे नेबर्स थे वो सब या तो कोई एडी था या तो वो फिल्मों में वैसे ही काम कर रहे थे. सो दे हैड लाइक मोर नॉलेज अबाउट इट एंड आई वाज स्टिल स्ट्रगलिंग. तो मुझे लगता था कि भगवान प्लीज़ ये फिल्म के बाद हम सब घर चले जाएं, सब डिस्पर्स हो जाएं, ये कोई कॉन्वर्जेशन स्टार्ट नहीं होनी चाहिए. बिकॉज देन आई यूज्ड टू फील लाइक ओह माय गॉड आई हैव नथिंग टू ऐड. एम आई नॉट स्मार्ट? क्या मुझे ही नहीं समझ आ रही है, सबको कैसे समझ आ रहा है. और कभी कभार ये कॉन्वर्जेशंस हो रही होती थी, सब दिमाग ऐसे जा रहा होता तो वो. Tell us one film which made you feel really, really stupid. There are many. I don't even remember the name now. But so many, like ऐसा world cinema I'm watching. और मैं दिल्ली की जिसने कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, बॉलीवुड देखा है. अब मैं वर्ल्ड सिनेमा देख रही हूँ, थोड़ा टाइम लगता है. तो फिर सबटाइटल्स पढ़ते पढ़ते भी आदत नहीं होती ना, ऐसे सबटाइटल्स अरे सीन पढ़ते पढ़ते कुछ और हो रहा है. तो मेरे को बिल्कुल आदत ही नहीं थी. मेरे चक्कर आ रहे होते थे कि यार सबटाइटल्स पढ़ूं, ये इनकी शक्लें देखूं. कभी कभार लगता था साधना मत पढ़, सिर्फ शक्लें देखते को समझ आ जाएगा. फिर देखते देखते लगता था कुछ समझ नहीं आ रहा, सबटाइटल्स पढ़ने पड़ेंगे. ये मतलब सबसे ऑनेस्ट वेंटिंग है अबाउट लाइक वाचिंग फिल्म्स विद सबटाइटल. चक्कर आने लग जाता है भाई. मैंने सब ट्राई कर ला है. अच्छा ये येलो वाला करके देख लेते हैं, येलो वाले में शायद आ जाएगा. नहीं है. बड़ा करके देख लेते हैं साइज, तब हो जाएगा. पूरी आधी स्क्रीन सिर्फ सबटाइटल से भरी हुई है. दिस इज इजी. और मैं जब अब देख लेती हूँ मैं सबटाइटल्स के साथ. हाँ कुछ फिल्में. मैं जब सबटाइटल्स के VLC पे देखता था दोस्तों से फिल्में लेके मेरी हार्ड डिस्क में, उसमें कभी कभी डिले आ जाता था कि पिक्चर पहले चल रही है सबटाइटल बाद में. हाँ. और ये भी तो होता था कि मेरे ना फ्रेंड्स डाउनलोड भी करते थे फिल्में. हैं? हम सब कर रहे हैं ये बदतमीज लोग. ठीक है, मुझे नहीं करना आता, मैं नहीं करती थी. अब वो देख तो रहे हैं, उनको समझ आ रहा था, मुझे लगता था इसमें सबटाइटल्स नहीं है. तो कहते थे डाउनलोड करने हैं क्या. फिर मुझे नहीं पता था कि यू हैव टू लाइक डाउनलोड सबटाइटल्स अलग से. कितना काम होता था भाई. एक्चुअली मुझे लगता है कि मुझे ये आदत पड़ी भी नहीं, क्योंकि मैं फ़ोन तो यूज़ कर लेती हूँ बट लैपटॉप्स आर नॉट माई थिंग. इतना कुछ होता है लैपटॉप्स में. तो मुझे लगता था ये कौन देखेगा यार, जो टीवी पे आ रहा है मैं जो चुपचाप बैठ के देख ले. ठीक है, कैसे करे, कोई वायरस आ गया लैपटॉप में भाई, एक दिन ट्राई कर तो करे क्या बंदा. तो मैं चुपचाप मैंने वेट किया कि OTT प्लेटफॉर्म्स आए. तो हमारा तब आया हमारी लाइफ में लेटरबॉक्स. For me also this is so refreshing कि पिक्चर ही नहीं देखेगी भाई, वायरस आ गया तो. यार नहीं होता यार कितना. और I hats off to people who are so passionate about watching films. You, my friend Rohan, my friend Anjali, they will do anything. They want to watch a film, they will watch it, and they watch it to learn something from it. I think they watch it with an open mind कि ये मुझे inspire करेगा. When I started watching like that ना कि I want inspiration and I want to see a new world, that's when I started like really watching movies. I got hooked onto it. I was like yeah, this is so much fun. It's like you go to a museum and you see art. वो भी मैंने मतलब ये सारी चीज़ें भी ना, एक बात बताऊं, जब पैसे आते हैं ना तब आते हैं आपको शौक. उससे पहले तक जब स्ट्रेस हो ना दिमाग में और है नहीं तो ये हॉबीज़ आती भी नहीं है. अब मैं क्योंकि अफोर्ड कर सकती हूँ चीज़ें, तो मुझे लगता है कि आई नीड टू बेटर माई सेल्फ एज एन आर्टिस्ट. देन आई फॉलो अदर लाइक
artist. Yeah. Their work. I will make sure that if I'm traveling, I'll go to a museum and see art. एंड उससे पहले तो मुझे लगता था म्यूजियम में पेंटिंग देखने से मुझे कैसे इंस्पिरेशन मिल जाएगी. मुझे अभी भी ये लगता है, तो मेरे को बताइए लाइक क्या होता है. आई डिड मीनाक्षी सुंदरेश्वर. ओके. वी शॉट दैट फिल्म इन 2020 दिसंबर. कोविड के जब खुल गया ऐसे, कोविड के बाद हमने वो कोविड में फिल्म शूट करी. एंड वी हैड, आई थिंक विवेक used to send me a lot of like painting references कि बहुत सुंदर सी पेंटिंग है, उसमें लड़की ना ऐसे कुछ करके ऐसे बैठी हुई है. And I was like, why is he sending me paintings to see? He said, just see this frame. That's when I realized that, oh my God, her posture is so beautiful, the way this woman is sitting. I started incorporating that in my acting. I was like, oh, ये कितना सुंदर लगेगा कि, और कई frames are inspired by famous paintings in that movie. Yeah. Some of the colors in those paintings, the way, I don't know, कि जैसे वो अगर पेंटिंग में अगर लड़का है या लड़की है, उनका हाथ कैसे हैं, वो कैसे बैठे हुए हैं. You can also like, you know, copy that as an actor. So when I see paintings, last year I went to London and I saw Sir John Sargent. I hope I'm getting the name right. His paintings, and I stood in front of one of his paintings and I started crying because I was like, oh my God, I've never seen something this beautiful in my life. मतलब उन्होंने औरतों की बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई हैं, and that kind of gave me an inspiration. I have like many, I got posters and I framed it and I have them at home कि वो कैसे बैठी हुई हैं या वो कैसे खड़ी हुई हैं. तो I think you also can get inspiration from other artists and other art forms, not just music. I think a lot of people use music to find inspiration, but there are other things as well that can inspire you. So when I saw Vivek getting inspired by a painting, and some of the shots in Meenakshi Sundareshwar are like beautiful. There's a frame where Meenakshi is sitting like that. That is also inspired by a painting. There's a shot where her hair is like that and she's on top of a book. That is also inspired by a painting. And when I saw that, I was like, wow, beautiful. Yeah. And I saw as I said, my best friend. I'll keep mentioning her because I think she really inspires me. She's also an artist. So a lot of her art is also inspired by, when she watches movies, I think वो movies देख के भी inspire होती है. So you meet other artists and you realize that there are so many other things that you can inspire yourself with. आप वो वाली पेंटिंग्स अप्रिशिएट कर पाते हो जो एब्स्ट्रैक्ट होती हैं कि एक खाली फ्रेम है? Modern art. Modern art. यार वो कुछ modern art, I remember there's a modern art about cobalt blue. There's a cobalt blue painting. I think that painting is in New York, Okay. MoMA. A lot of people make fun of it. I saw a meme on it, that what is it? But not a lot of people know that बहुत सालों पहले this artist invented that color. उससे पहले तक वो कलर भी नहीं था. So you watch like modern art thinking कि ये क्या है तो मैं भी बना लूँ. But if you see the year and you realize कि ये साल में इनके पास डिजिटल प्रिंटिंग नहीं थी, कैमराज नहीं थे, ये नहीं था, उसमें अगर उन्होंने इतने सालों पहले ये कर दिया है तो मतलब वो ओपन माइंड नहीं है. तो फिर आपको ये लगेगा पेंटिंग के सामने खड़े हो तो मैं भी बना लूँ. और बना ले जाके, बना रहे तुम बना रहे हो. आप ये जो बता रहे हो कि पेंटिंग से जो फिल्म्स इंस्पिरेशंस लेती है, लाइक देयर इज द शॉट इन शटर आइलैंड जिसमें लाइक ही इज़ विद हिज लवर और वैसे एंड दे आर मेल्टिंग, वो उसमें ना उनकी बॉडी आप लाइक एवेपोरेट होते हुए देखते हो थोड़ा थोड़ा. एंड देयर इज दिस फिल्म मेलंकोलिया, उसमें लाइक शी इज़ लुकिंग एट द मून, रिवर लाइक बह रही है, तो वो भी लाइक ऐसे पेंटिंग से इंस्पायर्ड है. वेस्ट में तो काफ़ी लोग करते आए हैं. आई डोंट नो इफ बॉलीवुड डज दैट. Like very few, like Vivek I know does that a lot. आपने उनकी फिल्म्स देखी है? अमित दत्ता जो लाइक पर्टिकुलरली उनकी फिल्म ही एवरी फ्रेम ऑफ पेंटिंग होती है. या एंड मुझे थोड़ा कम समझ आती हैं बट लाइक पीपल आर लाइक मैसिव Maybe you फैंस. should try. Maybe next time you are in a museum,
try keeping an open mind and see. Yeah, I the think ये details. बहुत And also read about the painting. Sometimes we miss the important information. If you see the year, then you'll realize that, oh my God, मतलब 1600, 1700, 1800, ये तब सोचा भी नहीं होगा. Some of the paintings you see, you feel like this is a modern painting, ये अभी की बनी होगी. But मतलब वो 1800s कभी कहीं बनी हुई है. It looks so real and so relevant. मेरे को तो ऐसा लगता है मैं किसी म्यूजियम जाता हूँ और मैं उसको देखता हूँ करना कुछ मेरे को why are you not doing something मतलब I put too much pressure on it कि you are not doing anything to me like I'm going with a lot of judgment. Yeah. That is I think मुझे भी था ये. But I think I'm surrounded by artists. All my friends are artists. हाँ And I realized that I'm missing out on something. ये कुछ ये लोग देख पा रहे हैं जो मैं नहीं देख पा रही. So you need to keep an open mind. You need to not be smart. That's it. Wow. There's this film by Werner Herzog. I'm forgetting its name, but वहाँ पे वो दुनिया की सबसे पुरानी caves में जाते हैं जहाँ पे first ever paintings were done on the cave. और वहाँ पे normal कोई इंसान की entry नहीं है, but like for the particular film, he goes to these caves and like he is just like marveling at the fact कि हज़ारों साल पहले लोगों ने ये पहली stick figures बनाई थी यहाँ पे. Yeah, so films like that are also वो देख के मेरे को लगा कि हाँ ये बात सही. Yeah, बहुत मतलब actors के लिए तो इसलिए भी important है if you're doing a period drama. Right. So these paintings can help you so much to अगर आपके पास कोई video reference नहीं है because आप कितना ही period drama films देख के inspire हो पाओगे. Then I think paintings and also history books are a good way to inspire. मुझे अब बताइए कि which are some of the films जिनको आपने 5 स्टार रेटिंग दी है लेटरबॉक्स पे. In the Mood for Love एवरी फ्रेम अ पेंटिंग है वो यार. is my all-time favorite film. Like I can watch, re-watch. मेरे साथ ये भी है कि अगर मुझे कुछ अच्छा लग जाता है ना तो मैं देख के उसको I keep re-watching it. I think I also choose comfort. So I watched it, I like it. I know if I'll watch it again, I'll feel the same comfort watching it. So In the Mood for Love. I think I also have Portrait of a Lady on Fire. That film, again on painting. There's a pattern. Each frame is a painting. Each frame is beautifully shot. The performances are beautiful. And sometimes when I'm watching it as a second or third time, I start seeing what the actors are doing with their like body. Like I love doing that. Like I love watching their hands and then feel like अच्छा ये ऐसे ऐसे अपना हाथ हिला रहे हैं, बड़ा सुंदर हाथ हिला रहे हैं. मैं कहीं ये यूज़ कर सकती हूँ तो मैं ये चीज़ें भी सोचती हूँ. आपने इन द मूड फॉर लव बोला लाइक उसमें देयर इज अ साउंड ट्रैक यूमेजीज थी. दैट्स द साउंड ट्रैक ऑफ माई लाइफ. Exactly. मैं जब भी कोई मुराकामी या कोई भी किताब पढ़ रहा होता हूँ आई प्ले इट इन द बैकग्राउंड एंड देन आई रीड दोज बुक्स. सो मेरी बहुत सारी किताबों की मेमोरीज हैं पर्टिकुलरली मुराकामी जो मैंने सिर्फ वो साउंड ट्रैक बजा के सुनी है. पर्टिकुलरली लाइक व्हेन आई मेट माई पार्टनर हमने ये गाना बजाया था एंड शी इज लाइक हे यू आल्सो लाइक इट और हम ऐसे ट्रिप कर गए कि दैट सॉन्ग. और ना यहाँ पे एक मैटेडन सिनेमा होता था लोअर परेल में. मैंने वो थिएटर में देखी थी इन द मूड फॉर लव देयर. या तो वो पुरानी फिल्म्स के रीरन्स करते हैं मैटेडन सिनेमा एंड आई डोंट नो इफ इट स्टिल एग्जिस्ट. बंद हो गया ना. हाँ बट लाइक मैंने इतनी सारी फिल्में वहाँ पे थिएटर में देखी हैं. या सो इन द मूड फॉर लव Must be so nice to watch that movie. या इन थिएटर या A different experience altogether. मैं Yes. तो उठूंगी नहीं. I think मैं जब भी वो मूवी देखती हूँ फिर मैं बैठी रह जाती हूँ उसके बाद देख के कि कितनी सुंदर फिल्म है यार. The music, the frames, the acting, so beautiful. Lapata Ladies is on that list. I love that film. Sick of Myself. इसके बारे में मुझे बताइए. आई हैवंट सीन सिक ऑफ माई सेल्फ. It's about this girl who's in a weird, psychotic sort of a relationship with her boyfriend, and they're constantly competing with each other. इतना competition बढ़ जाता है कि वो कुछ डार्क वेब से कुछ मेडिसिन ऑर्डर करती है और वो खा लेती है. उसको एक रेयर स्किन डिजीज़ हो जाता है जिससे उसको
एक न्यूज़ चैनल कवर करने आता है एंड शी गेट्स फेमस. So they're constantly competing for like fame and attention with each other. It's a very like weird, but weird in a nice way Right. sort of a film. Must watch it. The worst person in the world. I love it. I love it too. So जो worst person in the world की जो actress है, I don't know how to pronounce her name, Renevit or something. हाँ. मेरा एमा वॉटसन के बाद कोई प्रॉपर क्रश हुआ है बीच में, वो नॉर्मल पीपल वाली एक्ट्रेस पे भी हुआ था, डेजी एडगर जोन्स. देन इन्हीं पे रेने, लाइक शी इज सो ब्यूटीफुल. Yeah, she is. And the last scene where everything like stops and Yeah, she's yeah, running towards him. Oh, beauty. Beauty. इनकी एक और फिल्म है, आपको देखनी चाहिए. मैंने अभी धर्मशाला फिल्म फेस्टिवल में देखी थी, अरमान. आई हैव जस्ट heard about it in festivals. She is the mother of a son जो basically स्कूल जाता है और उस बच्चे पे कोई allegation आ जाती है कि उसने किसी और को मारा है. एंड लाइक उस बच्चे पे जो एलिगेशंस हैं उसको परेशान करे जा रहे हैं. एंड लाइक द मदर हैज़ टू लाइक टेक द बीटिंग फॉर लाइक हर सन देयर. या सो दैट इज़ वन फिल्म. The Whale is on this list also. Whale is also very nice. Oh my God, it's such a hard watch. Yeah. रो के बुरी हालत हो गई थी. मैंने ट्रेलर भी नहीं देखा था और मैं चली गई थी फिल्म देखने. एंड माई फिल्म गिरिजा. Your film? माई फ्रेंड गिरिजा. हाँ. गिरिजा वॉज विद मी इन जवान. तो हम दोनों देखने गए. हम दोनों ने ट्रेलर नहीं देख रखा था. पर उसके बाद जो हमारी हालत हुई है वो फिल्म देख के, आई थिंक 15-20 minutes in and then we were both shattered. We sitting and crying. उसके बाद हम उठ भी नहीं पाए. मतलब theater was empty but we were just not able to pull ourselves. Whale I think play पे based है, right? Is it? Yeah, it's based on a play. Yeah. Oh. और उसका सेटअप भी ऐसा ही है ना, वो पूरा वन रूम में जो पूरा का पूरा बना है. Yeah. Past Lives. Past Lives. A beautiful film. I think Past Lives was recommended to me by Aarti. Oh wow. She has recommended some really good films. Anatomy of a Fall. हाँ. Past Lives is also one of my favorites and मैं सबको एक आर्टिकल recommend करता हूँ. राहुल देसाई, who writes for Film Companion and now Hollywood Reporter India, he wrote an article about Past Lives. उन्होंने एक essay लिखा है उसपे. It's one of the most beautiful film essays I've ever read. So आपको पढ़ना चाहिए. तो हाँ, जितने भी लोग होते हैं ना जो पास्ट लाइव्स लेटर इन द लाइफ देखते हैं ना, मैं बोलते क्लब इट. आप पास्ट लाइव्स देखो और वो आर्टिकल पढ़ो. लाइक दे हैव टू गो हैंड इन हैंड. मुझे ना ऐसी रोमांटिक फिल्म्स बहुत अच्छी लगती हैं. एक्सप्लेन ऐसी रोमांटिक फिल्म्स क्या होना चाहिए. कुछ रोमांटिक फिल्म्स होती हैं जैसे दे आर आउट देयर कि अभी मुझे लड़की चाहिए तो मैं भाग कर जा रहा हूँ. हाँ. फिर एयरपोर्ट पे वो फ़्लाइट ले रही होती है और वो लड़का या लड़की एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं और अपने प्यार का ऐलान करते हैं. वहाँ फिल्म एंड हो रही होती है. और कुछ होती है ऐसी जहाँ वो प्यार है बट ऑफ कोर्स वैसा वो वाला नहीं है. इट्स वेरी रियल इन अ वेरी रियल स्पेस. इट आई थिंक आई लाइक एज एन एक्टर आई वॉन्ट टू डू अ रोमांटिक फिल्म विच इज़ in this space, in a real space. And I also feel there are so many films that we also need to explore platonic love. Yeah. Which I don't know if you have any film which explores platonic love. I have friends with whom I have platonic love, but not. But वो फिल्में भी मुझे या तो देखना या I would want to like be a part of a film which explores that. ए दिल है मुश्किल काइंड ऑफ एक्सप्लोज दैट कि अच्छा एक तरफा प्यार बट ऑल्सो अगर बॉलीवुड की बात करें तो हाँ, मतलब दोनों तरफा प्यार, प्रॉपर प्यार है बट इट्स प्लेटोनिक. नहीं. अच्छा. वो नहीं, प्लेटोनिक अलग होता है. ये नहीं कि मैं भी प्यार करता हूँ तुम भी प्यार करते हो, हम बात नहीं, हम एक दूसरे को बताएंगे नहीं. वो तो फिर आपके कुल अलग ही इश्यूज हैं आपके. या तो बता दीजिए या तो ठीक है हम आगे बढ़ते हैं. बट प्लेटोनिक माइस्ट्रो इज ऑन दैट लिस्ट टू. मैंने बड़ी फिल्मों को दे रखे हैं. द होल्डओवर्स. कटहल को मैंने 5 स्टार दिए. पगलेट को भी. ठीक है, कॉन्फिडेंस देख लो लड़की का. ओह आई हैव मोर. ओह माय गॉड द लिस्ट इज लॉन्ग. लेट्स गो. ओके, फैंटम थ्रेड. वो नाइस. कितने स्टार?
5. Amazing. Juno, 5. Nice. The Devil Wears Prada, 5. 5. Spirited Away, You have given Spirited Away 5 stars? yes. Oh wow. Good Will Hunting is another film that I can watch again and again and again and again. Okay. I love that film. मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पड़ा होगा वो देना. So मैं अभी सिंगापुर गया था and I got these postcards of Spirited Away and it has 30 ऐसे postcards. I also gave one to Aarti. I think again another recommendation by Aarti to watch She recommended Spirited Away to- and My Neighbor Totoro. Oh. ओह ऐसा नहीं है मैं नहीं देखती फिल्में, मैं देख रही हूँ. हाँ हाँ अभी तो मतलब अभी चालू ही है आपके लिए. अभी तो 1 स्टार वाले तक पहुँचेंगे हम. Wow. Do you write? Have you used these? या सो इसमें से लाइक यू कैन टेक आउट वन पोस्टर, बहुत इजीली निकल जाता है. पर अभी लिख के किसी को भेजा फिर? मैं भेजता नहीं हूँ, क्यों यार? लोग भेजते हैं, मैं वो रखता हूँ. मतलब मेरी राइटिंग भी आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ इट. यार इतना नहीं सोचने का, भेज देने का. वो जो पढ़ रहा है उसका हेडेक है, उसको समझ आ रहा है नहीं आ रहा. आप पीपल सेंडिंग यू पोस्ट कार्ड्स आज भी भेजते हैं आपको लोग? नो आई डू राइट लाइक हैंड रिटन नोट्स एंड ओह वाओ. लेटर्स. मेरे को आज तक लाइफ में जितने लोगों ने हैंड रिटन नोट लिखा है मैंने संभाल के रखा. सेम 30 पोस्ट कार्ड्स. यस. सो और हम कहाँ पहुँचे स्पिरिटेड अवे? वेयर इज द फ्रेंड्स हाउस? ओह नाइस. ब्यूटीफुल फिल्म, बहुत ही सुंदर फिल्म थी यार ये. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, another good one. Have you watched Certified Copy? यस आई हैव. कितने stars दिए? मैं स्टार्स नहीं देता. अच्छा ठीक है, but do you like that film? Yes, I love. I Sir. love. Juliette Binoche है ना इसमें? Yeah, if I'm not yeah, wrong. Yeah. And अभी तो वो कान फिल्म फेस्टिवल की इस साल I think she is the president and the head of jury ना. Oh wow. See, like इतना मस्त पैनल है. It's like Juliette Binoche is there, then Jeremy Strong, and Payal Kapadia. And I'm like, bro, this is so good. This is such a Yeah. Not only for her but for India as well. absolutely. Yeah. Absolutely. Any other films? अब वो lowest rating का कोई sort by option होता है क्या? Lady Bird. मैंने कहा ना, मैंने ना ज़्यादा लोएस्ट रेटिंग देती नहीं लोगों को. है पर ऐसा नहीं है नहीं. एक कोई मस्त सी लोएस्ट रेटिंग वाली बता दीजिए. रोड हाउस. ये नहीं देखी मैंने. I didn't like it. It has half a star on my. पर हाफ तो दिया ना, 0 नहीं दिया. हाँ वही लोग इकट्ठा हुए थे फिल्म बनाने के लिए. Yeah. Bad Times at the El Royale, ओके. 2 stars. Wow. यू नो सॉरी. हाँ, I think you know what I do. If I see on the letterbox that इसको इतने ratings मिले हैं तो ये अच्छी होगी, तो मैं वही देखती हूँ. मेरा दिल नहीं करता कि मैं बुरी मूवी देख के उनको क्रिटिसाइज कर लूँ कि नहीं. मैं जब स्कूल में था ना आई वुड वेरी डिलिजेंटली वॉच एवरी राजीव मसंद रिव्यू जो CNN IBN पे आता था नाउ शोइंग 10:30 बजे. तो उस पर मेरे को याद है पहली बार जब उन्होंने 0 स्टार्स दिए थे किसी फिल्म को. किसको दिए थे? एक फिल्म है सलमान खान की जिसमें शायद ब्लैक ताजमहल दिखाया. मारीगोल्ड, एक मारीगोल्ड ब्लैक ताजमहल. कोई गाने में ऐसे ही बीच में दिखाते हैं वो. उसमें कोई अमेरिकन एक्ट्रेस थी ना? yes. उसको 0 दिए थे. एंड आई ऑल्सो रिमेंबर द फर्स्ट फिल्म एन हिंदी फिल्म विच ही आई थिंक गेव 4.5. इट वॉज द लंच बॉक्स. Ooh, yeah. Yeah. It's there in my letterboxd. Yeah. 5 out of 5. 5 out of 5. What a film. Are you also like very invested in shows? आप shows देखते हो? मेरे कुछ कंफर्ट शोज हैं जो मैं कभी भी देख सकती हूँ. जैसे फ्रेंड्स हो गया एक, तो सभी देखते होंगे वो बार. ऑफिस Right. एंड सक्सेशन जो मैंने लास्ट सीजन मैं देख ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि आई नो इफ आई वॉच द लास्ट एपिसोड ऑफ द लास्ट सीजन देन द शो विल बी ओवर फॉर मी एंड आई एम जस्ट नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द फैक्ट. Have you done this for more things कि आपने एक चीज़ ही नहीं देखी? मतलब आप क्लोजर नहीं देते चीज़ों को. बेयर. The Bear also you didn't. I haven't seen the new season. वो भी 15 और एपिसोड लेके आ रहे हैं लेकिन a few weeks. या देखने पड़ेंगे बैठ के. हाँ. पता नहीं क्यों मैं, because I'm so happy with the last 2. पता नहीं क्यों नहीं होता.
आई थिंक आई हैव ओनली डन इट इन रिसेंट मेमोरी विद द लास्ट ऑफ अस, जो पेड्रो पास्कल का जो वीडियो आप यू माइट हैव हर्ड ऑफ इट, द लास्ट ऑफ अस, जो वीडियो गेम पे बेस्ड एक शो आया HBO का. Yeah. I haven't seen it after season 2 episode 2 because something happens in season 2 episode 2. Oh. And quote and like if I can spoiler someone. No, don't. कुछ के आगे मैंने देखा ही नहीं, मैंने कहा यार अभी बहुत वो चाहिए. Do you add spoilers to your podcast कि भाई कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ जो भी आ रहे हैं लोग? मतलब डिपेंड्स कितनी पुरानी चीज़ है कि हम मान के चल. शाहरुख खान को अलोना में लास्ट में मर जाता है. हाँ, ये स्पॉइलर नहीं है. ये मतलब ये कल्चरल चीज़ है कि आपको अभी तक क्यों नहीं देखा है? हाँ. इंस्टाग्राम पे देख लोगे तो आधी चीजें तो इंस्टाग्राम इसकी तो शेम बनती है. मतलब अगर किसी ने कल होना हो नहीं देखी तो कैन वी शेम देम? नहीं यार. एज आई सेड, कई लोगों के मम्मी पापा नहीं दिखाते हैं, मेरे मम्मी पापा भी नहीं दिखाते थे मुझे फिल्म में. डोंट शेम देम. डोंट टेल पीपल ये नहीं देखा तूने, ये भी नहीं देखा, कर क्या रही है तू. ये तो मेरा आई हैव बीन स्कार्ड ना, मैं किसी को स्कार नहीं करूँगी. नहीं देखा मत देख, कोई बात नहीं. मैं ऐसी हूँ. नहीं देखा, ये देखना चाहिए वैसे, पर मत देख. कोई बात नहीं. अगर कोई आपको बोले कि मैंने मैसेज नहीं देखी तो अब से कोई बात नहीं. ओह या मतलब मैं ऐसे पकड़ के ऐसे दिखा तो नहीं सकती कि बैठ के देखो तुम. लेटर बॉक्स में स्टार डालो. करना तो चाहिए, अपने दोस्तों के साथ कर सकते हो. हाँ. पर वो उनके साथ भी नहीं करते. We are constantly consuming. So when people tell me, you know what, I don't watch films, or you know what, I'm not on social media, I feel like great life. आप मेरे को ऐसे मुंह पे कॉल आउट कर रहे हो, constantly consuming. We are constantly consuming ना. देख लेंगे. अभी क्या है कि I'm also very lucky कि films are on OTT, वो रहेंगी उस पर और लोग देख लेते हैं. जो फिल्म अच्छी है उसको ऑडियंस मिल जाती है. You know, one of my ways of knowing कि किसी फिल्म की कितनी रेटिंग है, showing it to my parents. So जो मेरी कम्युनिटी में हो रहा है, उनके व्यूज़ हो सकते हैं, you know, not good enough to script वगैरह, but what my parents say, वो बेसिकली इंडिया के नर्व्स मेरे को लगता है वो होती है. These are two very different audiences. आपको पता है जिस दिन मिसेज रिलीज हुई थी, आई थिंक प्रीमियर एक दिन पहले था शायद उससे. अगले दिन आई थिंक 1 या 2 दिन जब भी मैं जयपुर में था, उसके बाद आई एम फ्रॉम जयपुर, तो मैंने मेरे पेरेंट्स को सुबह आई थी आपके Z5 पे, सुबह 7 बजे लगा दी. एंड आई ऑल्सो सेंट अ पिक टू आरती एंड दे लव्ड इट. मैं वापस आया नीचे ब्रेकफास्ट करने, दे लाइक हाँ हमने देख ली, दे लव्ड इट. या सो पेरेंट्स आर ऑलवेज वेरी एक्यूरेट. मैं जब ये एपिसोड्स भी कर रहा होता हूँ एंड लाइक कोई गेस्ट आ रहा होता है, मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि फलाना ठीक है, मेरे नहीं वो अच्छी है, ये वाली अच्छी नहीं है. So you get a very real like feedback from them. If I'm meeting people who are in the film industry, they will only talk about the film industry. Yeah. ये एक बहुत true है. जैसे इंडिया जैसे आराम नगर पार्ट 2 सोचता है, वैसे इंडिया नहीं सोचा. Yeah. और वो बहुत ज़रूरी है to move out of that. हाँ. Sometimes I'm sitting with people who are talking about the business side, the PR side of it. So I completely zone out. I can't relate to those conversations because I also मेरे साथ ये भी है क्योंकि all my friends are, you know, most of them are not from the industry. मैं actually core group कोई भी industry का नहीं है. That's such a great thing. है मतलब कुछ ना कुछ extent से हैं, but most of them are not from the industry. Amazing. And that gives me, you know, that thing, that break from. And that keeps you grounded, that keeps you real. नहीं तो अगर आप सिर्फ वर्षों वालों के साथ हैंग आउट करो, अरे क्या ये हुआ, ये फिल्म में ये है, ये फिल्म का ये हो रहा है, और फिर ये फिल्म में ये इसको ले लिया है, और ये एक्टर है, वो डायरेक्टर है, थोड़ा मैं उससे काफ़ी दूर हो जाती हूँ. मुझे लगता है कि इतनी सारी बातें क्या, मतलब बहुत कुछ है लाइफ में टू एक्सपीरियंस. Which are some of your favorite films in regard to dancing? Dancing में आपको like आपकी favorite? दिल तो पागल है. मेरा अभी भी pinned है the Dance of Envy. Yeah. Dance of Envy तो मैं जाके देखता रहता हूँ. Who was the better dancer in the film? क्या बात कर रहे हो यार, ये नहीं, दोनों बहुत अच्छे. फिर भी नहीं अरे बता दो. No, both. Okay. Both. Black Swan. Black Swan. There are many क्योंकि I was also teaching and learning ballet at one point, so we used to get homework to watch a lot of like dance films. ये स्टेप अप वगैरह आपने देखी है?
देखी है स्टेप अप, कॉलेज में देखी थी और बहुत इंस्पायर भी हुई थी देख के, बट अब मैं देखूंगी वापस से, मे बी नॉट. हम डांसिंग में उनकी म्यूजिकल्स की भी बात कर सकते हैं. Last year, I saw a couple of musicals. I saw Phantom of Opera. Blew my mind. वो बोट चला रहे हैं. ऐसा फ्लोट करके आ रही है. It looks like there's water. My mind was blown. Mamma Mia, I love, and the choreography is really amazing too. एक और मेरे को बहुत अच्छी फिल्म आ रही थी, मेरे दिमाग से मतलब इससे जुप करके चली गई है. हम बैठे हैं अभी, आपको कभी भी याद है बता देना. हाँ. We'll take it. According to you, which are some of the best choreographed songs in India? 2024 का बोलूँ तो तौबा तौबा. You know, choreography is really cool and catchy, but I like the way they have shot. Like you can see the choreography. You can see everything. Otherwise, I feel कि बड़ा कट बड़ी जल्दी कट हो रहा होता है. तो एक वो आँख. No, बहुत सही choreography. I really like बहुत it. अच्छी choreography. पीयूष and Shazia, I think they know how to make the song work Right. and how to get the choreography right. They're both extremely talented. You have also choreographed a few songs, right? आपने Secret Not few, but yeah, just once. The Secret Superstar song. Yeah. Okay. Sexy बलिए. Nice. और वो भी ऐसा नहीं था कि मुझे करना था या क्या है, पर मेरे पास तो अपॉर्चुनिटी आया. हाँ. अद्वैत was like, you dance so well, तो मेरी फिल्म में कोई कोरियोग्राफी क्यों नहीं करती. मैं कहा हाँ कर लूँगी. I thought he was joking, but he wasn't. And it got very serious when Amir sir and Advait were like, are you ready with the choreography? And I was like, oh my god, they're not joking, like this is actually happening. So I took like a day off. I said I'll come tomorrow and I'll show you the choreography. And I winged it. तो मेरे दिमाग में था कि कैसा करना है, बट वहाँ पे मुझे नहीं पता था कि कैसे करते हैं. पता है मेरे को वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग्स अबाउट कोरियोग्राफी क्या लगती है, अगर आप पुरानी फिल्म्स देखो ना 2000s की, हर गाने का एक अलग कोरियोग्राफर है. पहले वैभवी मर्चेंट का नाम आएगा एक गाने के लिए, फिर सरोज खान का नाम आएगा एक गाने के लिए, फिर फराह खान का आएगा. एंड आई एम लाइक दे गॉट लाइक मल्टीपल कोरियोग्राफर्स फॉर मल्टीपल सॉन्ग्स इन अ सेम मूवी. इज इट लाइक अ कॉमन थिंग? या इट इज. एंड व्हाई डज दैट हैपन कि एक ही को क्यों नहीं रख लेते? क्योंकि फील और स्टाइल भी अलग होता है. एंड लाइक इज एवरी कोरियोग्राफर इन इंडिया फेमस फॉर अ पर्टिकुलर वो कि इसके लिए हमें लाइक आई थिंक सो. मैंने इतनी फिल्में करी नहीं जिसमें डांस है. आई नो आई वर्कड विद विजय गांगुली, आई वर्कड विद बॉस्को. ये मैंने पिछले साल ही बड़े सारे कोरियोग्राफर्स के साथ काम कर लिया, पर उससे पहले तक मैंने ऐसी कोई फिल्म करी नहीं थी जिसमें डांस हो रहा है. आई वर्कड विद विजय फॉर मोरनी बनके. उसके बाद आई वर्कड विद हिम अगेन ऑन सैम बहादुर फॉर दैट सॉन्ग दैट वी डिड. वो इतनी सी बात, वो वाला भी विजय कोरियोग्राफ्ड. एंड मीनाक्षी सुंदरेश्वर के गाने विजय कोरियोग्राफ्ड. सो आई हैड ओनली वर्कड विद हिम. बॉस्को के साथ आई वर्कड विद हिम ऑन दंगल, बट दंगल में भी डांस नहीं था. आई हैव ऑल्सो वर्कड विद वैभवी मर्चेंट मैम. सो आई थिंक दे ऑल हैव देयर ओन स्टाइल. आई एम अज्यूमिंग, क्योंकि मैंने करा नहीं इतने सारे गाने, तो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू से कि ओ इनको क्यों लेते हैं और इनको क्यों नहीं लेते. बट आई एम अज्यूमिंग क्योंकि स्टाइल अलग है. Who is one of the most underrated dancers in India? कौन से ऐसे एक्टर्स हैं? अरे ये जूल थीफ जो अभी नेटफ्लिक्स पे मूवी. हाँ. जयदीप अलावत. जयदीप अलावत dances so well. Boy, my mind was blown and I was like, of course he dances well. हैरानी की क्या बात है भाई, इतने अच्छे एक्टर हैं, he can do anything. एंड सबका आर्क यही था, जयदीप अलावत इतना, of course he dances well यार. जयदीप अलावत ऐसे हाँ, मेक सेंस. he's जयदीप अलावत यार. डांसिंग की बात हो गई. एंड आपके फेवरेट एक्टर्स कौन है, लाइक इन इंडिया एंड लाइक फ्रॉम हॉलीवुड इन वर्ल्ड सिनेमा? Tabu ma'am in any film. या Her performances in Maqbool,
her performance in Heather. Right. Okay, the film is, a commercial film, but she brings something else only to the character, Yeah. which makes the film better, and also, of course, her character shines. I talk about it a lot, Talwar mein, even though she had a small role, but I remember every scene she had with Irfan sir. So good. And most recently, आपने almost like आपकी जो bucket list है of working with all the film directors. Yeah. Because आपने इतने सारे like legendary directors के साथ काम कर लिया, like Mani Ratnam sir and like जितने भी रितेश बत्रा sir, आरती के साथ आपने किया, and the list goes on. Who are Vishal the sir. yes, Vishal sir, Nitish Tiwari. Nitish Tiwari. तो और कौन रह गया अभी like Martin Scorsese is one like Yes. He's definitely there on that list. And I know I'll work with him nice. soon. Nice. Ow. अब मेरे को आपसे बात करनी है किताबों की. Which are some of your favorite books? Recently, this book by Dolly Anderson, or I don't know, Good Material, the book is called. मुझे लगता है कि मुझे books का ज़्यादा patience, I have more patience to read books than watch something. ये लाइन मेरे को हाईलाइट करनी है बिकॉज मोस्टली ऐसा नहीं होता लोगों के Yeah. साथ. यू हैव मोर पेशेंस फॉर बुक्स दैन फिल्म्स. Yes, I tell you why. I love creating I just love how my brain works when I'm reading a book. Like I imagine their faces, and that's why I also prefer reading scripts. And I start making their world, not just what they're wearing, their faces, and that, yeah, I love creating that in my, like, imagine my characters. Dolly Alderton, ओके. Good Material. Happy All the Time by Laurie Colvin. एक तो हाउसमेट सीरीज है अभी, आई थिंक सिडनी स्वीनी के साथ उन पे मूवी बन रही है. इट्स अ थ्रिलर एंड आई सीन, ये मैंने बहुत टाइम पहले हाउसमेट सीरीज आई स्टार्टेड रीडिंग एंड उसकी 3 बुक्स आ चुकी हैं. सो आई हैव रेड ऑल 3, बट आई थिंक इट्स अभी नाउ इट हैज़ पिक्ड अप एंड पीपल आर रीडिंग क्वाइट अ लॉट. तो आई कीप सीइंग किसी ना किसी का स्टोरी दैट दे आर रीडिंग द हाउसमेट सीरीज. अब उस पर मूवी भी बन रही है विद सिडनी स्वीनी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. येलो फेस. Oh, Yellow Face. You like Yellow Face? Yeah, I love I that. have to read it, yeah. Yeah, it's a good one. पर बहुत अच्छी है. The Rachel Incident, another very good one. Or I think I can read more non-fiction than fiction, but I like that fiction really takes me away from my world. Then I'm spending more time with these new characters that I have developed in my mind. तो मुझे ये fiction पढ़ना बड़ा पसंद है. Tomorrow and Tomorrow is one of the most beautiful books that I've read, and this book explores platonic love in the most beautiful way. ये ज़रूर पढ़ना. I think I'm going to butcher the name, but Kim Ji-young, born 1982. Okay. We can call it a feminist book, but it's about this woman in Korea, and she has written about her experience living in Korea and the kind of things that she, went through growing up there, all the Eve teasing and so many other things. And when I was reading it, I was like, damn, it doesn't feel like Korea at all. Like I have also experienced this living in India. So it was like a very weird sort of a feeling that something like this connects women around the world. Teacher, I think, is by the same author who wrote Housemaid series, another thriller. You know what I do? Whenever I feel like, ऐसा मुझे फिर से बुक्स पढ़ना स्टार्ट करना है, then I quickly read a thriller and I get into the habit of reading. क्योंकि thrillers you usually finish in like 2-3 days. फिर आप you pick up a book and feel like हाँ अब मैंने पढ़ लिया, अब मैं ये पढ़ूँगी. मैं थोड़ा बैक ट्रैक करना चाहता हूँ बिकॉज इट्स सो अगेन रिफ्रेशिंग टू सी योर लव फॉर बुक्स बिकॉज मोस्टली आज की डेट में sometimes when I talk to people they are struggling with reading. So do you have any advice for people to read more? Because I'm struggling.
this year, Yeah. but not last year. Yeah. But जब भी आप पढ़ते हो, how do you get in the zone and how are you able to read so much whenever you are able to? You know what helps me? Watching other people read. Now you have social media. There are many book vloggers. They keep posting themselves reading. And whenever I see someone else reading, I feel like, what am I doing with my phone? Like that. Such a good hack. And you're like, okay. And I quickly like watch maybe a book YouTube video, like a booktuber. What are they हाँ, called? booktubers. Booktubers, right? हम भी हैं, मतलब हमारा पूरा एक बुक्स पे चैनल है, किताबी कैबिन्स. Oh yeah. So I'll watch something like that and I'll get inspired and I'll be like, yeah, I should watch it. There's this guy Jack. Sorry, read. Not watch. There is a guy Jack Edwards. He is also a booktuber and like all the girls swear by his videos. Like he's also very good looking and like great recommendations. Ooh, okay. मेरे ना फ्रेंड्स भी बहुत बुक्स पढ़ते हैं तो मुझे लगता है ये पीयर प्रेशर भी है. Yeah. ये वो लिस्ट माय they read a lot and then I feel like what am I adding to this conversation? It's another like hobby कि अब I can afford all of this, of course I'm going to read, but books are like way cheaper and a nicer option. I feel it keeps your And once you lock in, आपको कोई वो नहीं होता कि तब आपको distraction वाला कोई yeah, issue but नहीं you have to get into a habit of picking up a book rather than picking up your phone or any other thing. So I keep Kindle app on my phone, on my iPad. Right. तो quickly वो ऐसे कि नहीं Kindle पढ़ो. Have you also tried audiobooks? Yes, I have tried audiobooks. पढ़ी भी है. And best way to spend time. Yeah. But अभी now I've switched to like podcast. फिर podcast सुन लिया. I'm glad आपने audiobooks बोल दिया. Audible खुश हो जाएगा. Yeah. मैंने Audible के साथ कर रखा है काम. Yes. I've done a series. You have a Audible original. ससुराल Wonderful. What's that about? Don't remember that, but I remember recording that in peak COVID and they had sent all the material home और मैंने अपने कमरे में एक छोटा सा स्टूडियो सेटअप बनाया था and I learned how to record with the mic and that's when I learned laptop as well. तब मैंने सीख लिया था कि कैसे रिकॉर्डिंग सारा सॉफ्टवेयर सब कुछ उन्होंने दे हेल्प्ड ऑनलाइन जूम कॉल पर कि कैसे सेटअप करना है, स्टूडियो कैसे बनाना है, फोम लगाया, सब घर पे रिकॉर्ड किया विद ऑल द अदर एक्टर्स. सो वी यूज्ड टू बी ऑन अ जूम कॉल और साथ में रीड करते करते रिकॉर्ड करते थे और रिकॉर्ड करने से पहले क्लिक करा, क्लैप करा, सारी रिकॉर्डिंग्स देन यू आर सेंडिंग इट टू ऑडिबल. और सच अ फन एक्सपीरियंस, मतलब मज़ा ही आ गया. और फिर मुझे लगा कि ये चीज़ उसके बाद आई थिंक उससे पहले ना मुझे जब भी मैं किसी सीन के लिए या किसी फिल्म के लिए डबिंग कर रही होती थी ना मुझे लगता था कि यार ये माइक लगा के भी आवाज़ नहीं आ रही है, डब करना पड़ रहा है. पर उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि आप यू कैन प्ले विद योर सीन्स, यू कैन मेक इट साउंड लाइक एनी थिंग आफ्टर शूटिंग. डबिंग पे भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं. तो दैट हेल्प मी अ लॉट एज एन एक्टर कि भाई आवाज़ से भी एक्टिंग अलग होता है. ये आपको लग रहा है कि आप पूरा अपनी एनर्जी डाल रहे हो एक सीन में, बट कभी कभार वो ट्रांसलेट नहीं हो रहा होता. फिर आप वापस सुनो रिकॉर्डिंग तो आपको समझ आता है कि ये तो बहुत ही ख़राब साउंड कर रहा है. पूरा दिल जान लगा के एक्टिंग करके आप पूरा डायलॉग बोल रहे हो कि ये और फिर वापस सुनो तो कुछ भी नहीं, कोई फील ही नहीं आया उसमें. देन यू लर्न हाउ टू कि ये पिच अलग है, ये मैं अगर इतना थ्रो डालूंगी तो ऐसे आएगा. आई थिंक it helped me a lot as an actor to do that Audible series. Please, मेरे को इतना मज़ा आया वो करके. I want to do it again. Audible, if you are listening. And I think I'm very good at it. You know, there are so many actors who are doing this, who are recording like audiobooks. Rosamund Pike did the audiobook for Pride and Prejudice. एक तो उनकी आवाज़ anyway इतनी सुंदर है. That a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife. It's sensual, elegant, everything is there. Then when you see all these actors come in to record, ये अलग ही एक genre है. मैंने इस पे भी एक reel भी बनाई थी. बिल्कुल. Yeah. And I know I can do it really well. You know what I do? I read
there's this website called Talk. Talk. Yeah, which has like interviews. Is it interviews or the talk? The talk. The talk, right? The talk. So it has interviews. Dude, I love that. Like, I yeah, love black and it. white में जिसमें yeah. जिसमें बड़े सारे बहुत सारे सेगमेंट है फिल्म से लेकर हर सारे चीज़ों के और लोगों के इंटरव्यूज हैं उस पर. सो आई रीड दैट एंड आई रिकॉर्ड माई सेल्फ रीडिंग दोज इंटरव्यूज. What are you saying? या जस्ट टू गेट इन टू अ हैबिट ऑफ. और मुझे लगता है कि एक तो इंटरव्यू देना भी प्रैक्टिस करना पड़ता है. नाउ आई एम वे कंफर्टेबल गिविंग इंटरव्यूज and doing this what I'm doing right now, but when I had started this is not like a natural thing कि आप कैमरे के सामने बोलो. और कई लोगों को बहुत ब्यूटिफुली आता है वो करना, बट मेरे लिए मुझे प्रैक्टिस करना पड़ता है. सो आई लव डूइंग दैट ऑल्सो. सो समटाइम्स आई रिकॉर्ड माई सेल्फ रीडिंग अ बुक, like audio record the audio, or sometimes I record audio of me reading someone else's interview. It's so fascinating. आपने बताया you like recording yourself, तो you are going to love our next segment. हमारा ये नेक्स्ट सेगमेंट है ऑडिबल ऑडिशन. मैं आपको एक पेज दूंगा एंड आपको इसको यू हैव टू रीड इट आउट. इट्स फ्रॉम एन ऑडियो बुक. ओके ठीक है. ठीक है. ओके आई विल से एक्शन. ठीक है. एंड एक्शन. The theatre had come alive. Halfway through the film during the intermission, Tamil chartbusters were blaring from the speakers. A 4-year-old girl had got up from her seat and was dancing in the aisle. Her parents gaped as the audience cheered. Oblivious to all this, the girl danced with abandon, casting a shadow on the blank cinema screen. Sharing this childhood memory with me in our only meeting in 2012 at the Delhi premiere of English English, Sri Devi had reminisced. I danced and danced until someone pulled me back. Guys, बहुत सही. This is so beautiful. This is actually from Sri Devi's biography, Eternal Screen Goddess, and like it is on Audible. So yeah. Wow. अभी मैं आगे किताबों से आगे बढ़ना चाहूँगा. And tell me about your favorite Instagram handles. You can check your phone for this. And YouTube. मैंने ना Instagram कल ही डिलीट करा अपने फ़ोन से. अच्छा. My favorite Instagram handle याद करके बोल देती हूँ. कोई ऐसे डांस रील्स जो बनाते हैं और अदरवाइज जिनका आपको कंटेंट देखना पसंद है? या शाजेब. ओके. ही इज़ अ कोरियोग्राफर. आई डांस विद हिम क्वाइट ऑफन. उसका कंटेंट बड़ा अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि मुझे जैसे ही मैं देखती हूँ किसी को खुल के डांस करते हैं तो मेरा मन करता है कि यार डांस करो. सो आई फील लाइक मैं फिर उनकी रील देखती हूँ, फिर मैं बहुत इंस्पायर हो जाती हूँ, फिर मैं गाना चलाती हूँ, फिर मैं डांस करती हूँ. तो और आई इवन कॉपी their choreographies. Donnie is another choreographer from Delhi and also a friend. Even Shazib is a friend. I usually ऐसा कोई famous नहीं है, पर मेरे ही friends हैं जिनके. कर दो यार, मतलब बढ़िया, सबके फॉलोअर बढ़ जाएंगे. आप बोलो. अंजलि मेहता, my best friend. She's an artist and her out is she puts her art on her Instagram handle and she keeps posting really good like book recommendations. Namita Dubey. Oh, you like Namita? Namita has been on our channel multiple times. Oh yeah. Yeah. I love her book recommendations. Let's go, Namita. She'll be so happy. I'm so happy you mentioned. Namita is also a friend. Oh, nice. Yeah. So her YouTube channel, whenever I feel like क्या book पढ़े, of course Namita. I'll tell you something. Namita came on Chalchitra many years back, and like the video had some decent views. Cut to aspirants आता है and वो video फट गया. Like everyone went and watched her book recommendations after that. So well read. Yeah, and I love everything Namita is doing. Yeah, me too. Yeah. Me too. And I love her reels that she makes. The book that I'm reading right now is called Mothers, Fathers and Others by Siri Rustaver, which is a bunch of essays. And I can smell this woman's intellectual panache in these pages. तो सारी किताबें तो वो पढ़ती है, तो I really like her content as well. Do you watch stuff on YouTube also? A lot. YouTube तो delete नहीं किया होगा आपने? कर दिया. YouTube भी delete कर So दिया? for some time I need some time off. Like I want to, and I have a lot of scripts to read. Because I watch, मुझे लगता है कि that's my most used social media app. But it's also, yeah, it is a social media because I'm consuming
कंटेंट. बहुत यूट्यूब देखती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा. अरे वाह. व्लॉग्स देखती हूँ लोगों के. कौन? एमा चेम्बरलिन बहुत फेमस. You love Emma Chamberlain? Okay. Yeah, I love her vlogs, and now she has also changed her style of shooting the vlogs. So it looks like a short film that you're watching. Yeah, man. She's getting the best of all worlds. वो इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर, एक्ट्रेस, एवरीथिंग. और वो इससे पहले शायद मेट गाला भी होस्ट करती थी. हाँ, even this year she hosted. No, this year she Vogue for Vogue she does for Vogue. इस साल she also did. Yeah. बट शाहरुख खान का तो इंटरव्यू किसी और ने लिया हाँ, पर वो कोई और होगा, but Vogue का usually. Vogue का इस बार भी एमा चेम्बरलिन ने लिया. Yeah. Her YouTube channel, Sakshi Shivdasani's YouTube channel, their podcast. Yeah. जो भी आ रहा होता है YouTube पे, I keep watching it. I love vlogs. Have you seen Ronnie and Bati? They are these travel like creators and ये hills में जाके vlogging करते हैं. They are. Yeah, I have seen their content as well. It's very like high production and बहुत सुंदर. अभी मैंने एक और यूट्यूबर came across जिनका मैं कोई ट्रैक का देख रही थी. पता नहीं कौन सा ट्रैक था जहाँ लेक में स्कल्स थे. हाँ. Yeah, it's in India. So I forgot the YouTube channel's name, but You can tell us later. We'll put yes, it here. yeah, please. I will let you know. हाँ. But his content was so well shot. I was just mesmerized by their shot taking and the way the storytelling. I think he's also a good storyteller, that guy. एक चैनल है. I don't know if you've seen चलचित्र टॉक्स. I don't know. Yeah, of course I have. The longest interview one. I know, man. Yeah. पहले मुझे देख के लगता था कि इतनी देर कैसे कोई बात कर सकता है, बट अब जब मैं कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है कितना मज़ा आ रहा है यार. ये तो मैं 5 घंटे कर सकती हूँ तुम्हारे साथ. Let's go. अभी तक हमारा सबसे लॉन्गेस्ट आई थिंक 2.5-3 घंटे का. बट आज आपकी फ्लाइट है तो हम we'll be a little mindful of that. बिकॉज ये एक ट्रेंड चल रहा है. यू नो, लेक्स फ्रीडमैन इज अनदर पॉडकास्टर. उसके पॉडकास्ट पे सब आए हुए हैं. Elon Musk and all the science people. Andrew Huberman. And oh, you love Andrew Huberman. Yeah, another podcast, YouTube, Instagram. Andrew Huberman like has also helped me a lot in life. Me too. Yeah, उनकी कुछ वीडियोज़ है पेन के ऊपर. लाइक मतलब क्योंकि वो कोई भी चीज़ पकड़ते हैं ना, एक तो सब कुछ रिसर्च बैक्ड होता है. Yeah. कि यार मैं आज पेन की बात करूंगा and I'll tell you how that works. Incredible how little a punch hurts during a fight, and it's incredible how much it hurts after a fight. The molecule adrenaline, when it's liberated into our body, truly blunts our experience of pain. Do you know of Dr. Peter Attia? He has written Outlive. So Outlive is one book जो आपको Andrew Huberman swears by. And Andrew Huberman also swears by this book called Comfort Crisis. वो उसको बोलते हैं 21वीं सदी की one of the most important books. Okay. हाँ, तो that is something I've been recommending a lot. तो आपको वो भी पढ़नी चाहिए. You have read that? Yeah. It's मैं रोज सुबह काटर पे जब वॉक पे जाता हूँ तो मैं सुनता हूँ इसको. या तो मैंने ऐसे हर चीज़ के मैकेनिज्म बनाए हैं. वॉशरूम में एक किताब को लेके हर चीज़ का एक डेडिकेटेड प्लेस है, सो दैट इट्स अ पार्ट ऑफ माई डेली लाइफस्टाइल. I keep mixing. I think I should also, do that, like routine my social media. या जैसे मैंने क्या किया हुआ है, एवरी टाइम इन फ्लाइट आई विल वॉच एन ओल्ड हिंदी मूवी. बिकॉज मैंने एक बार एक फ्रस्ट्रेशन बताई थी कि OTT प्लेटफॉर्म्स कभी कभी फ्लाइट में चलते नहीं. इवन व्हेन आई डाउनलोड, मेरा कभी कभी नेटफ्लिक्स पे डाउनलोडेड क्लिक ही नहीं हो रहा. यूट्यूब उसमें बहुत रिलायबल है. ऑल दीज ओल्ड फिल्म्स आर ऑन यूट्यूब. और मैं हर बार एवरी टाइम आज सिंस यू गेव अस अ डेट टुडे, सो आई एम आल्सो फ्लाइंग बैक टू माय होम टाउन इन द इवनिंग. 5 बजे की मेरी भी फ्लाइट है. Wow. आज मैं गुलाम देखूंगा फ्लाइट में. Lovely. I usually read on flights. I actually picked a book up. ऐसा नहीं है नहीं पढ़ी, मैंने लिस्ट में भी देखा. But I'm also reading Wedding People, another fiction. But अच्छी है, it's a funny book. यार मेरी बहुत अच्छी बुक recommendations रह गई हैं. बोलो प्लीज. This writer director who wrote One Day Okay. wrote a book. You Are Here, I think that book is called. Okay. Another book that it's romance, but it's not romance. It's not about romance. It's about something else. It's a beautiful book. Okay. I prefer reading a book or a script Got in the it. flight. Flights में बैठ के कुछ अलग ही होता है. या है ना? लाइफ में बहुत कम ऐसी चीज़ें रह गई हैं जहाँ पे इंटरनेट
नहीं पहुंच पाता अब तक। बहुत कोशिश कर रहे हो फ्लाइट्स में भी इंटरनेट देने या की। मैंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में फ्लाइट्स में देखी हैं। और फिर मैं हूँ ऐसे बहुत सेंसिटिव ऑडियंस, तो मैं अगर कोई बहुत ही इमोशनल फिल्म देख रही होती हूँ तो, और मैं यूजुअली अगर फिल्म देखनी होती है तो मैं लॉन्ग फ्लाइट्स में ज़्यादा देखती हूँ। अच्छा मैं यहाँ जा रही हूँ तो इसका टाइम ये होगा तो ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू स्लीप, आई कैन वॉच लाइक 3 फिल्म्स। या सो आई वॉच 3 फिल्म्स और फिर वो भी देखना पड़ता है। इसमें मैं इतना रो रही हूँ, आसपास के लोग देख रहे हैं कि भाई इसकी हालत ख़राब हो रही है, हुआ क्या इसको। अब मैं एक इस पे वीडियो बनाने वाला हूँ, द साइड स्क्रीन व्यूइंग। जब आप कभी लोकल ट्रेन में होते हो या फ्लाइट में होते हो कि आपकी साइड में लोग जो भी देख रहे हैं स्क्रीन पे, आपको इतनी दुनिया के बारे में पता चलता है कि कहीं रेस्टोरेंट में बैठे हो, लोग ईयरफोन लगा के, आप ऑटो में जा रहे होते हो, ऑटो वाला कुछ देख रहे हैं, दैट्स होल अनदर वर्ल्ड कि अच्छा ये सब भी लोग देख रहे हैं। और खुद की फिल्म चल रही होती है ना तो अलग ही होता है वो। Have you experienced that? Mrs. Nice. I was traveling. I had a cap and a mask on. तो मैं बैठी हुई थी और आसपास मैंने 5 लोग देख लिए जो मिसेस देख रहे थे। तो मैंने कहा वाह, felt really good. So Lit School are our sponsors. ये एक बैंगलोर बेस्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग का स्कूल है। यहाँ पे एवरीथिंग इज़ अबाउट लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस। और मेरे को आरती ने एक चीज़ बताई थी कि जब मैंने उनसे पूछा कि मैं सानिया से क्या पूछूं, शी इज़ वन ऑफ दोज पीपल हु इज़ इंटरेस्टेड इन ऑल प्रोफेशंस एंड उनको हर चीज़ में बहुत क्यूरियोसिटी है। तो मुझे एक चीज़ बताइए, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपने करके सीखी, पढ़ के नहीं, लाइक एंटी रट्टाफिकेशन, जहाँ पे यू डिड नॉट डिपेंड ऑन बुक्स, वी हैव स्पोकन अ लॉट अबाउट बुक्स, बट जस्ट थ्रू एक्सपीरियंसेस व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव लर्नड इन लाइफ? एक्टिंग मैंने ना, मैं कोई फिल्म स्कूल गई, देख के ही सीखा। डांस मैंने देख के सीखा था। मैं बोलती हूँ मैंने ट्रेनिंग लिया है, पर मेरी ट्रेनिंग इज़ ओनली 1 or 2 years जो मैंने कॉलेज में आके ली, पर उससे पहले तक मैंने सब देख देख के सीखा। डांस कैसे करते हैं, एक्टिंग कैसे करते हैं, एक्सपीरियंस और देख देख कर। ये 2 चीज़ें तो बहुत ही मेन, मतलब मेरा प्रोफेशन ही यही है, पर मैंने एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ें सीखी। और ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पे आप लेक्चर दे सकते हो, लाइक अ स्किल सेट ऑन विच यू कैन गिव अ लेक्चर टू पीपल, इसके बारे में लाइक आई वुड लव टू टीच पीपल? मैं तो पहले ही बैठ जाऊँगी। आई थिंक आई हैव लर्न हाउ टू बी अ गुड लिसनर। तो आई लव लिसनिंग कि लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम ना बोलने में लग जाते हैं और ये सोचने में लग जाता है कि अच्छा ये बोल रहा है तो इसके बाद मैं क्या बोलूँगी या क्वेश्चन है। बट टू लर्न हाउ टू लिसन इज द थिंग यू लर्न अ लॉट। एक चीज़ पे मैं दे सकती हूँ तो ये है कि हाउ आई टॉट माई सेल्फ टू बी कॉन्फिडेंट, एंड आई एम स्टिल टीचिंग माई सेल्फ टू बी confident, क्योंकि some people think that oh I can't ever do this, but you can easily learn how to do the things that you think that you can't do. Like I constantly used to tell my team, this is when I just started my career, that I can't give interviews, I don't like giving interviews, but the reality was I didn't know how to give interviews. I was not listening to the person who was asking me question, and I used to go with the mindset thinking that this is like a viva. और वो डर भी लगता है ना, क्योंकि इंटरव्यूज तो मैं अपने स्कूल और अपने कॉलेज से एसोसिएट करती थी उस एक्सपीरियंस को, तो आई नेवर लाइक्ड इट। बट देन व्हेन आई स्टार्टेड हैविंग कॉन्वर्जेशन विद द पीपल हु आर इंटरव्यूइंग मी, इट फेल्ट बेटर। ऑल्सो एज आई सेड, आई प्रैक्टिस you know at home, like I'll read something, then I'll record or work on my pitch. I used to also mumble, because when you're not confident you're also mumbling, धीरे धीरे बोल जाते हो। then I teach, और ऐसा नहीं है कि ये मतलब it's not linear, it keeps going up and down with what and how I'm feeling or how my life is going. So something, yeah, इस पे शायद मैं दे पाऊँ TED Talk. बिकॉज दिस इज समथिंग आई रिलेट विद। जैसे आप कह रहे हो आपने सीखा कि इंटरव्यू देते कैसे हैं, मैंने ये सीखा इंटरव्यू लेते कैसे हैं। इन कोविड जब पूरी दुनिया सो जाती थी, तो मेरा एक पर्सनल यूट्यूब चैनल है जहाँ पे बहुत 500-600 सब्सक्राइबर हैं। मैं रोज़ रात को 2 बजे उस पर एक लाइव स्ट्रीम करता था जिस पे सिर्फ 2-3 लोग आते थे, एंड आई वुड प्रैक्टिस एवरी डे कि लोगों के सामने कैसे बोलते हैं। Wow, that's a great idea. कि मेरे को ये बहुत है कि यार जब जग रहे होते हैं मम्मी देख लेगी शिट ये क्या कर रहा है, आई एम लाइक लेट एवरीवन स्लीप,
I'll go live every day at night at 2 or 3 a.m. and then I will stream with the people who want to. See, you can actually learn anything, and we are blessed that we have internet, we have social media, we have all the possible apps that are out there. Now we also have AI Absolutely. to help us learn something that we don't know, क्योंकि ये सब स्कूल में नहीं सिखाया जाता. Yes. ये जो लेट कर रहा है वो हमारे स्कूल में भी नहीं था. वो तो मतलब बुकिश नॉलेज वाज रियली इम्पोर्टेंट. Absolutely. मुझे अब आपसे वन ऑफ द लास्ट सेगमेंट्स पे आपसे बात करनी है. अब हम फूड और ट्रैवल की बात करेंगे. सो विच इज़ योर गो टू हेल्दी स्नैक? मखाना. और मैंने जैसे पहले बताया कि आई ईट फार्मली अ लॉट, लाइक ऑलमोस्ट एवरी डे, 1 डब्बा अ डे. 1 डब्बा a day. Not exaggerating at all, I swear. Peri peri and salted one, so you mix them. क्योंकि थोड़ा peri peri is also salt, like it's मीठा and it's tangy. वो salt वाला it just balances it. So I get both the dabbas and then I mix it and eat. This is crazy, amazing. ये मैंने नहीं किया है कभी, क्योंकि मेरे को क्योंकि ये I think ये peri peri है. हाँ, I think so. तो देख के पता चल जाता है भाई. पेरी पेरी. हाँ, तो फिर ये और salted. बिकॉज मिसेस भी आई है तो मेरे को आपसे फूड रिलेटेड रिकमेंडेशंस तो लेनी है. विच आर योर लाइक इन जनरल फेवरेट प्लेसेस टू ईट इन मुंबई? वही टफ क्वेश्चन. मैं घर पे खाना खाती हूँ मोस्टली. जो भी बनाना होता है या कुछ क्रेविंग होती है तो मुझे घर की खाने की ज़्यादा क्रेविंग होती है. सो मैं इसको एक्सपैंड कर देता हूँ. लाइफ में आपने बेस्ट खाना किन किन जगहों पे खाया है? एनी प्लेस इन द वर्ल्ड? थिंक आई एम ऑल्सो, आई लव माचा अ लॉट. तो मैं माचा, अगर मैं बाहर जा रही हूँ तो आई ट्राई माचा. वो भी मैं घर पे बनाती हूँ. कॉफ़ी भी मैं घर पे बनाती हूँ. कहाँ बूजी का खाना मुंबई में मुझे बहुत अच्छा लगता है. Nice. बूजी कैफ़े का. दैट्स माई गो टू प्लेस. इफ़ आई वॉन्ट टू ईट आई फील लाइक हाँ चलो बूजी चलते हैं. मुंबई में वो. और दिल्ली में तो बहुत सारी जगह हैं थाली वाली खाने की या घर का. मैं वैसे मोस्टली घर का खाना बहुत पसंद है मुझे यार. इज़ूमी भी अच्छा है मुंबई में, वो जापानीज़ फूड. मैं पता है वैसी मम्मी बनूंगी कि बच्चों को ले गए हैं बाहर और वो बच्चा कह रहे हैं बहुत टेस्टी है. मैं बोलूँगी ये तो मैं घर पे बना लेती. मिसेस कंप्लीटली बिग सेगवे. आप कितनी पिक्चरों में घर छोड़ के भागे हो? बहुत सारी फिल्में हो गई क्या? है ना? पगलेट में, मिसेस में. हाँ, ये दो में ही. बट आई वाज लाइक, जब मैंने देखी मैंने कहा ये तो पैटर्न है ब्रो. पर पगलेट तो वापस आ गई होगी. वो संध्या काम करने गई थी. मिसेस में नहीं आई. हाँ, मिसेस में नहीं. अच्छा वो नहीं आई. एंड विच आर योर लाइक फेवरेट ट्रैवल स्पॉट्स इन द वर्ल्ड? बाप रे, कहीं नहीं जाती मैं. पता है मैं थाईलैंड बहुत जाती थी किक बॉक्सिंग करने, क्योंकि मैं बॉक्सिंग, दंगल के बाद मैंने बॉक्सिंग करना स्टार्ट किया. ओह वाओ. एंड ऑल माई वेकेशंस आर लाइक वेलनेस रिट्रीट. मतलब ऐसे नहीं खुद का बनाया हुआ वेलनेस रिट्रीट है कि गए हैं तो फिर जाके किक बॉक्सिंग चल रही है, स्कूबा डाइविंग हो रहा है, थक हार के वापस आ रहे हैं. वेकेशन पे लोग रिलैक्स करने जाते हैं, मैं थक के वापस आ जाती हूँ. बड़ी कितना इंस्पायरिंग है. हाँ, बट नाउ आई थिंक आई नीड टू go on a vacation where I'm not doing anything. I have a habit of filling my, schedule and. पर filling your schedule with kickboxing and skydiving ये तो नहीं, बहुत important होता है यार. कभी कभार बैठ के बोर होना. हाँ. कि कुछ नहीं कर रहे हो. मैं वो भी सीख रही हूँ. आई थिंक दिस ईयर आई एम लर्निंग हाउ टू डू नथिंग. क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे. क्या देख रहे हो? कुछ भी नहीं देख रहे. तो आई वॉन्ट टू लर्न दैट ऑल्सो. क्योंकि मुझे याद है बचपन में समर वेकेशंस कितनी लंबी लगती थी यार, कि ख़त्म ही नहीं हो रही, कितना मज़ा आ रहा है. फिर लास्ट के 15 दिन में लगता था ये तो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया. बट कितना कुछ होता था करने को. इसी टाइम के अराउंड चालू होती थी समर वेकेशन, मिड में, फिर 2 जुलाई 3 जुलाई तक. आई ऑनेस्टली मिस बीइंग बोर्ड. लाइक बोर्डम शुड ऑल्सो बी अ हॉबी. अभी मैंने फिर एवरी ईयर आई वॉज गोइंग to that same island in Thailand. और वो छोटा सा है और 6 घंटे दूर है वो. कोई आता नहीं है उस आइलैंड पे. और फिर बिकॉज आई नो वहाँ पे लोकल्स को, तो उनके साथ अलग मज़ा आता है. किसी के रेस्टोरेंट चले गए,
वहाँ पे एक नेपाली फैमिली है जिनका इंडियन रेस्टोरेंट है, तो वहाँ चले गए खाना खाने. देन आई टुक माई पेरेंट्स ऑल्सो टू दैट आइलैंड. फिर जब मैं अपने पेरेंट्स को लेकर आई, देन आई रियलाइज़ कि तो बहुत दूर है यार, यदि यहाँ सच में कोई नहीं है. क्योंकि आप अकेले होते हो तो ठीक है, कब कुछ ना कुछ करके टाइम स्पेंड कर लेते हो. व्हेन आई हैड मम्मा पापा विद मी, आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, हाउ डू आई कीप देम एंटरटेन्ड. बट दे लव्ड इट. बट उनको नहीं कुछ है ही नहीं ना, छोटा सा आइलैंड है, उसकी आबादी भी बहुत कम है. वहाँ आई लव्ड लेह लद्दाख, बहुत सुंदर है लेह लद्दाख. और दंगल के रिलीज़ से 1 महीने पहले मेरा एक फ्रेंड है अनुने, जिसका यूट्यूब चैनल है, ही इज़ ऑल्सो वेरी फेमस, ही इज़ अ ट्रैवल ब्लॉगर. तो उसका कॉल आया कि तू ले चलेगी. मुझे लगा बड़े सारे लोग आ रहे होंगे, तो मैंने कहा हाँ ठीक है. बट ही वॉज द ओनली वन. तो हम लोग गए पहले मनाली से हमने बाइक ली, और फिर हम बाइक से ले गए और ले घूमा. बहुत ही सुंदर. So lovely, yaar. My last question, anything that you purchased for less than 10,000 rupees that you would like to recommend to people? A product. कुछ भी हो सकता है. I would not recommend buying anything. क्यों कंज्यूमरिज्म फैला रहे हैं हम? कुछ मत खरीदो, सब घर पर है. कोई ज़रूरत नहीं लेने की कुछ भी. बैठे रहो. बुक खरीद लो, बाय अ बुक. बाकी सामान खरीद के घर भरे पड़े हैं यार. हालत ख़राब. मैं कभी नहीं बोलूँगी कि जाओ ये ले लो. जो लेना है ले लो, नहीं लेना मत लो, कोई बात नहीं. प्रेशर में मत आओ. Thank you so much, Sanya. This is one of the sweetest conversations I have had on the channel. Oh my God. And I want to give you a small gift from our end. Family, call me. Thank you so much. And please give. These are our merchandise. हमारा tote bag अभी missing है because बहुत जल्दी हुआ ये episode. But this is a T-shirt चलचित्री. इस पे लिखा है recommend me a book. Oh, wow. And I'll send you more merch. हम आपकी टीम से coordinate करके we'll send you more. Yes, please. Thank you so much for this. Thank you so much for calling me. I feel like कि काश मेरी फ्लाइट नहीं होती तो हम Yeah. आपके YouTube चैनल का लॉन्गेस्ट इंटरव्यू करते 5 घंटे विदाउट AC. दोनों AC बंद कर दिए. कोई ऐसी चीज़ जो मैंने नहीं पूछी हो जो आप बताना चाहेंगे? Anything you would like to plug? नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ हो गया. मेरा सब कुछ भी नहीं हुआ. आई थिंक वी शुड डू दिस अगेन. Let's go. Thank you so much. नमिता भी बहुत बारी आई है ना. Yes. हाँ, तो मैं भी आ सकती हूँ ना वापस. With Aarti. Yes. 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 And you know, we should like then talk to her because she watches a lot of movies Yes. and her favorite films, and whatever films that she likes, I like them as well. Like I love her recommendations. Thank you so much. Amazing. Can't wait to eat this and can't wait to watch our Episode. Yeah. So guys, कैसा लगा आप लोगों को episode? If you have watched the episode till here, use the hashtag Shikanji in comments. Some of you or most of you will get the reference. And now let's talk about the brands that made this episode possible. This season of The Longest Interview is presented by the Lit School. Lit School एक Bangalore based school है जहाँ पर experiential learning programs होते हैं, जहाँ आप directly industry experts से सीखते हो. यहाँ पर आपको rectification नहीं करनी होती और आप directly brands के लिए problem solve करते हो. They have very interesting programs coming up, so if you want to join, you can click in the link in description and you can directly join or book a call with the counselor. You'll get all the details through the website. I also want to give a shout out to Audible. You guys might have already loved the brilliant book segment in this episode, so you must check out all the audiobooks we discussed with Sanya in this episode. Audible की आपको free 2 month की subscription मिल जाएगी if you click in the link in description. I also want to give a shout out to our snacking partners Family के बारे में सान्या और मैंने काफी बात करी. Like she said, she is consuming a lot of their products. हमारे जो episodes के center में एक product है, that is Famlay's Date Bites. It's a product that loves you back. It's a product I also consume myself. They are available on Amazon, Flipkart, Big Basket, Blinkit, Swiggy and Zepto. You can also get it from their website and you will get an additional discount there if you use the code CCT15. So this was the beautiful, brilliant and a very authentic episode of The Longest Interview Season 3. Please keep watching Chalchitra Talks and I'll be back soon.